Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to the session. This is me, Erza, and I'm going to be giving a session on continuous professional development. I'm going to start off with a small introduction of myself. So, I am a transnational educator by the profession, and I'm in the field since the past 4 years. So, right now, I'm going to start this with continuous professional development. बहुत एक वर्डी सी टर्म लगती है बट I believe as we proceed towards the presentation, the session, by the end हम सबको ये जो terminology है इसकी अच्छी understanding develop हो जाएगी and we'll see that we can apply it in the profession as well. So अगर इससे पहले किसी को question है तो you can raise your hand. In the meanwhile, during the presentation अगर तब भी आपके mind में कोई question हो, you can just ask anything. You can probably raise your hand or just ask me. I'm here to answer all the questions. Thank you so much, Erza. Just one thing before starting this session, I want to request all of the participants who are using mobile, they might not be able to see the public chat directly. So on top left of your mobile screen, you can see a small human icon, right? And when you click on that, the public chat will pop up. So you can comment there. And I request all of you to introduce yourself in the public chat, just a brief introduction so we know who is there. And yeah, this is pretty much it. Thank you, Irza, please. Irza, the people will be introducing themselves with time. You can just start your presentation. Okay, you just can start, see right? later. Yeah. Thank you. Okay. Hello, Aksa. Assalamu alaikum. Welcome. Okay, so let's just start. Acha, before we formally move towards continuous professional development, I just have these precise learning outcomes to present. हम इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, उनके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे. We'll discuss कि हम इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. All in all, we're going to be talking about employability, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरह से आप प्लान्स को डेवलप कर सकते हो. ये हमारे लिए हमारे वर्क लाइफ में, हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, वाई दे एसेंशियल. And we talk about career planning, उसकी importance, and obviously about CPD, which is continuous professional development. We'll talk about some specific tools that can be used, and then we'll move towards the frameworks, and then हम उसकी application देखेंगे so that we can apply the essentials. Right? Acha, before we start, I just have one small questions from the viewers. किसी को कुछ idea है what is employability skills? I think they're soft skills. Yes, thank you. Raspa, they're soft skill. हम जब अपनी CV डेवलप करते हैं या हम जब कम्युनिकेशन की क्लास लेते हैं, we generally listen about these skills, right? That आपने अपनी CV में इंक्लूड करने हैं हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, या you have to work on your soft skills. तो employability skills generally जो है वो एक बहुत ब्रॉड सी टर्म आ जाती है. ठीक है, employability बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसने मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमन रिसोर्स, नेशनल पॉलिसी, वोकैबुलरी, इन सबको ज्वाइन किया हुआ है. राइट? हम जब अपनी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं या इवन हम अपनी एजुकेशन के फील्ड में हम स्टूडेंट्स हैं, वी टेंड टू लिसन टू दिस फील्ड वेरी लेस कि यार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है क्या. मतलब ये तो हम एसेंशियल हो गया ना, दैट वी नीड टू हैव स्किल्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी जॉब. बट वो स्किल्स डेवलप कैसे करने हैं, क्या वो स्किल्स हैं, कौन से स्किल्स एसेंशियल्स हैं? बिकॉज आई एम श्योर all of us have multiple skills, abundant skills, but उनमें से कौन से skills applicable हैं, कौन से skills essential हैं, उनको हम apply कैसे कर सकते हैं, right? तो पहले हम उनको discuss करेंगे so that we can build up a foundation of our continuous professional development. तो employability skills in simple words कोई भी ऐसे skills हैं that someone needs to be employable. For instance, dependability, reliability, honesty, trustworthiness, along with those employment skills that are actually required to carry out a task. For instance, knowledge base है आपकी, कोई experience है in whatever vocational area you're working, वो numeracy से equivalent है, वो computing skills है, वो आपकी medical skills है, whatsoever, जिस भी field में आप हो, employability skills are the baseline of it. अब employability skills की अगर हम common examples देखें, आप कितने flexible हो in social situations, आप अपने results की responsibility किस हद तक लेते हो. Do you consider yourself accountable for your actions?
आर यू प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड? क्या आप डिस्प्ले कर रहे हो सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? क्या आपके वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है? ये सब मिलके आपकी काउंट करते हैं फॉर योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. अब इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ये बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है, राइट? बी इट आप अपनी ग्रेजुएशन में हो, आप अपने एम्प्लॉयमेंट में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर पर्सनल गोल्स इन लाइफ, in terms of helping become productive and to contribute to the community and the economic development. अब I believe everyone can say कि अगर हमारी लाइफ में कोई एक चीज कांस्टेंट है तो वो चेंज है. इट्स हैपनिंग इररिस्पेक्टिव कि आपका करियर कितना स्टेबल मूव कर रहा है. द करियर इज लाइकली टू इन्वॉल्व मेनी जॉब्स, different kind of job roles या different employers है. even if you are staying in the same job, it is likely कि आपके जॉब का जो नेचर है वो over the time चेंज होगा. तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैव टू बी ट्रांसफरेबल सो दैट जो भी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है आप उस पर इजीली जो है अडेप्ट कर सको, राइट? अब उसको अडेप्ट करने के लिए जो उसकी बेसिक फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स, दैट इज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. विल टॉक अबाउट द डेफिनेशंस फर्स्ट एंड देन विल एक्सप्लोर देम इन डेप्थ. अब पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? जैसे आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, सिंपली अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जिसमें आप फोकस कर रहे हो अपनी और अवेयरनेस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, अलॉन्ग विद द ओवरऑल सेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट? एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिंपल वर्ड्स में कोई भी आपके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स या आप कहीं भी अचीव कर सकते हो. आप इंडिपेंडेंटली इफ यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ यू कैन अचीव इट, या फिर आप किसी वर्क प्लेस के अंदर हो वहां से आप अचीव कर सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, ठीक है? बट both of these terms are essential in terms of self improvement and learning professional credentials because together ये relevant है आपकी employability skills से. आप उसको कह सकते हो it's a part of the whole, right? अब it's about, अगर हम जर्नली एक स्टेटमेंट में पूरी बात को अब तक की सम अप करें, it's just that you have to make an effort to get the best from your learning journey to become employable in future, right? That is so far what where we're heading. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, पर्सनल तो समझ आ गया ना आपको, आप पर्सनली अपने आप पे वर्क कर रहे हो, तो व्हाट इज बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम? हम जब ये टर्म सुनते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आई एम श्योर हम सबके माइंड में फॉरन एक प्रोफेशनल से सेटअप आ जाता है दैट यू वर्किंग इन एन ऑफिस, बेशक वो आपकी 9 to 5 जॉब है, जो भी आपकी फॉर्मल जॉब है, व्हाटएवर फील्ड यू आर, वहाँ पे जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है अमंग मेंबर्स, या अगर आप स्टूडेंट हो and you are taking up a course at the university or college, जो उसकी environment की setting है, वहाँ से आप जो कुछ भी you're grasping, that is professional development. But this also encompasses informal settings. आप कोई भी ऐसा context जिसमें आप किसी colleague के साथ, किसी peer के साथ discussion कर रहे हो, अपनी खुद अकेले बैठे कोई R&D कर रहे हो, या you are observing a colleague's work, या फिर you're learning from a peer, all of these encompass your professional development और ये shape up करते हैं आपके फ्यूचर को, राइट? अच्छा, अब let's switch back to personal professional development. एक स्मॉल सी स्टेटमेंट है, it's about being the best you can be. अच्छा, बहुत से हम इस तरह के quotations पढ़ते हैं about learning, about being the best. So you see the capacity to learn, ठीक है? ब्रेन हर्बर्ट का एक quote है that the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill. बट क्या आप willing हो to learn, that is your choice. तो यहाँ पे it's all about the choices you make in your life. बहुत दफा क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल करियर में भी अपने हो, आप देखोगे आपका करियर बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रहा होता है. उसका रीजन ये है दैट यू हैव डेवलप्ड अ कंफर्ट जोन. यू बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट यू कैन बी. यू टेंड टू बिलीव कि अगर मैं इस कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करूंगा या करूंगी तो मे बी आई मे नॉट बी एबल टू आउट परफॉर्म, या आई मे नॉट बी एबल टू अचीव व्हाटएवर आई डिजायर. ये एक मिसकंसेप्शन है, because you see that is just the tip of the iceberg. Whatever comfort zone you have developed around you or you believe to be is your comfort zone is actually just confining you. हम लोग उस dimension से बाहर आके खुद को explore करते ही नहीं है. Do you think, it's like a pause to ponder moment for everyone who's in the session, that do you think this is the best you can be, or do you think there is a lot more that you can explore? लेकिन हम वो एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं बिकॉज हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स को अब तक आइडेंटिफाई कर ही नहीं सके. वी डोंट नो व्हाट वी रियली आर. उसका बेसिक रीजन ये है कि हम स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लानिंग नहीं करते. वी जस्ट टेंड टू गो जिस भी डायरेक्शन में हमें चलाया जा रहा है, वी जस्ट टेंड टू गो इन दैट डायरेक्शन. बहुत कम इस तरह होगा कि हम बैठ के सोचें या रिफ्लेक्ट बैक करें या इस तरह के
ऑनलाइन जो आपके पास क्विजेज आते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग, हम उनको देख के आइडेंटिफाई करें दैट व्हाट एग्जैक्टली आर पर्सनल गोल्स. सिर्फ एक प्रोफेशन को टारगेट करना, वी टेंड टू बिलीव दैट इज आवर करियर, राइट? इफ आई वांट टू बी अ डॉक्टर, दैट्स इट. If I want to be a teacher, that's it. If I want to be an accountant or whatever field, an engineer or whatsoever, हम ये believe कर लेते हैं that that's it. That's a full stop. But that's not the full stop. That's actually starting. You see? Because आपने तो अभी बेस्ट बनना है ना अपनी फील्ड के अंदर. आपने तो आइडेंटिफाई करना है दैट मेरा अपना पोटेंशियल कहाँ पे लाई करता है. अब बहुत से ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिन्होंने पीपीटी को एसेंशियल कर दिया है. पाकिस्तान में चीज इंट्रोड्यूस हुई भी है. बहुत सी ऐसी, if I have to quote an example, I'll be quoting the example of software houses, जहाँ पे पीपीटी को एक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट को. They tend to have, एक रिक्वायरमेंट कर दी गई है कि in order to, learn in your profession, there's some certain requirements for you that you have to achieve in order to keep your job. इसमें क्या है कि आप वॉलंटरी कोई नया स्किल सीख लो, आप कोई नया सेशन अटेंड कर लो, आप कोई नई जो सर्टिफिकेशन है वो कर लो. जब आप पीपीटी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होते हो तो व्हाट हैपेंस इज that you tend to improve yourself, and जब आप खुद को improve करोगे, naturally you will be improving your organization as well. So organizations के लिए it's a give and take वाला system, because when you will be gaining a skill, obviously they'll be benefiting out of it. So in order to ensure कि आप अपने organization के standards को भी meet up कर रहे हो, आप customer को भी satisfy कर रहे हो, customer, client, whatsoever, it's important कि आप ये जो PPT है अपना इसके ऊपर work करो. ठीक है? अब इस पे हम work कैसे कर सकते हैं? How can we ensure that we tend to be the best of ourselves? उसके लिए बहुत से methods हैं. सबसे पहले तो you have to plan. You see, it's a famous quote that if you're not planning, you're actually planning to fail. अब प्लानिंग क्या है? सिंपल एक प्रोसेस है. आप अपने लॉन्ग टर्म करियर के गोल सेट करते हो. आप ये देखते हो कि आप इनको कैसे अचीव करना है, राइट? इट्स मतलब आपने सिंपली अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश कर लिया कि दिस इज माय गोल्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. ठीक है? वेयर डू यू वांट टू अचीव देम? हाउ विल यू अचीव देम? That's a real question. इस तरह बहुत से assessment tools हैं. One of them is PDP, जिसको हम कहते हैं Personal Development Plan. It's simply a plan that you make on a paper, जिसमें आप ये decide करते हो कि आपके इस तरह से आपने assess करना है अपने आप को, आपकी strengths क्या है, आपकी weaknesses क्या है, आपके personal goals क्या है, आपने कैसे उनको achieve करना है, आपका action plan क्या है, ऐसे कौन से areas हैं that you need improvement in. And then how can you improve them? ऐसे कौन से actions हैं जो आपने carry out करने in order to achieve those personal goals? And obviously कोई obstacle तो नहीं आ जाएगा. अब क्या होता है when we are planning, we tend to be very optimistic कि हमने एक plan lay out किया कि अच्छा मैंने at the end of the day इस चीज को achieve करना है. And we tend to think कि everything will go in our favor. But what actually happens is real life scenario में everything does not tend to go in our favor. होता क्या है that we have a lot of problems that we have to go through. कुछ भी, कोई भी आपका unnecessary obstacle बीच में आ सकता है. Something we cannot even predict. अगर हम एक broader aspect में बात करें तो COVID-19 pandemic is a real example of that. हमने अपनी life के उस stage पे बहुत सी achievements को नहीं achieve कर सके, whatever goal we had set, because external factor आ गया which was beyond our control, right? तो ऐसे बहुत से obstacles होते हैं that is in your control, that hinders your personal progress, but problem ये आता है that we tend to ignore them. या जब हम planning कर रहे होते हैं हम उनको include ही नहीं करते. ठीक है? एक simple सा example, रोज सुबह उठ के आपने अपनी यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस के ऊपर जाना है, right? And आप रोज plan करते हो कि ठीक है, I'm going to wake up, the distance is around 10 minutes, I'm going to wake up 30 minutes early, I'm going to get ready and then I'm going to go. So what happens is that आप ready हुए and that very day maybe your car is let's say not working properly, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया. सो इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो जब भी आप प्लानिंग करो, इररिस्पेक्टिव का वो कितना छोटा गोल है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली. ठीक है? तो ये हमारे कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हो गए दैट वी हैव टू इंश्योर व्हाइल वी आर प्लानिंग. तो पीडीपी क्या हो गया? एक मैकेनिज्म जिसमें अपनी नीड्स को आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो. किसी के लिए डिफिकल्ट है, कुछ लोग बहुत बाय द बुक चलते हैं, इट्स वेरी इजियर फॉर देम टू फॉलो इट. सम पीपल लाइक मी, वी टेंड टू आप स्टार्ट में जब आपकी मोटिवेशन होती है इट्स वेरी हाई, बट व्हेन द टाइम कम्स टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, आपकी मोटिवेशन भी डाउन चल जाती है. दैट्स एन ऑब्स्टैकल दैट व्हिच यू हैव टू नोट. सो यहाँ पे आई होप सो फार यू अलोंग विद मी.
we've actually understood कि यार ये एक टूल है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम पढ़ सकें where do इसके आपके करियर पर्सपेक्टिव से भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, आप नंबर बात की थी, you can actually think about them well. आप अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो एट वर्क. इंस्टेड कि आपका जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आए एंड आपका जो भी सुपरवाइजर है या आपका लाइन मैनेजर की टीचर्स हैं इनफैक्ट, they come and tell you that these are your weaknesses, you need to work upon them, and then we'll be talking for the next year. आप उससे पहले खुद को देखो, आप देखो इंडिविजुअली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, so that you can actually promote your personal motivation as well. और आप ये ट्रैक कर सकते हो कि जो पर्सनल प्रोग्रेस है वो कहाँ पे लाई कर रही है एट द मोमेंट, राइट? Okay, it further actually improves a sense of आपकी जो mental well-being है वो भी ready. Why? Because you have something in front of you. You have a progress के आप कर रहे थे and अब आप किधर हो, right? So that's what personal development planning is all about. अच्छा, अब just a small template for you to understand कि हम किस तरह से PDP या जो भी प्लानिंग कर सकते हैं. कोई कंसेंसस नहीं है कि आपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स का जो गोल का आपका स्केड्यूल है वो आपने किस तरह रखना है या आप किस तरह से ट्रैक रखोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. PDP में बहुत सी लिस्ट आती है, बहुत से मेथड्स आते हैं. एक सिंपल टेम्पलेट आपके सामने इट्स विजिबल, इट्स कॉल्ड अ PDP. आप सिंपली उसको मेजर करने का क्राइटेरिया, आप क्या एक्शंस ले सकते हो और क्या आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटकम हो सकता है व्हेन यू अचीव इट, राइट? आपको डायरेक्शन मिल जाएगी वेयर यू आर हेडिंग. फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं. आपका ऑब्जेक्टिव है दैट यू वांट टू बी प्रमोटेड एज अ टीम लीड. सो उसका क्राइटेरिया आपके सामने सिंपल है. नंबर 1, आपने कोर्स है वो करना है. नंबर 2, योर प्रमोशन विल बी कंफर्म्ड बाय द लाइन मैनेजर इटसेल्फ. प्रमोशन प्लान क्या कर रहे हो? बहुत दफा हमारे साथ होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमें क्लियर होता है, क्राइटेरिया भी पता होता है कि उसको अचीव करने के लिए दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, बट वी आर नॉट टेकिंग एन एक्शन अपॉन इट. मोटिवेशन है, शायद हम इस चीज से डर जाते हैं कि जो रिजल्ट की एक्सपेक्ट नॉट कम. लर्निंग सो इट्स गोना टेक सम टाइम. हो सकता है जब आप स्टार्ट में अपनी पीडीपी प्लानिंग करो, आप पीडीपी टेम्पलेट अपना, मे बी इट्स possible that you may not be able to achieve whatever result or outcome you were expecting, but that's okay because ये start है. That's going to happen again. You see, it's a cyclic. हम उस लूप में we have to improve ourselves instead of demotivating ourselves कि यार मैंने तो ये सेट किया था, मैं किया कर सका, maybe this is not for me, maybe that is not for you, maybe you were bound to do better things. So you see, you just have to set up an objective, criteria, action, and the result and outcome will be in front of you. So ये एक recommended template है. इसके अलावा बहुत से tools हैं. For instance, SWOT tool है, SMART goals हैं. इसमें आप SMART is an acronym which stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time. आप simply one line के goal set करते हो जिसमें आप ये decide करते हो that आपने किस तरह से उनको जो है achieve करना है, right? Okay. So like I said कि PDP या कोई लाइफ में कोई भी चीज एक लूप में चल रही है आपकी, ठीक है? तो ये प्रोसेस भी हमारा एक लूप है where all you have to do is establish a purpose and direction, then you have to identify उसको डेवलप करने की नीड, look at the development opportunities, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग you have to formulate an action plan. And this is a process which you can apply anywhere and everywhere irrespective कि अपने लाइफ के किस स्टेज पे हो. If you're a student, you can apply the PDP process. If you are someone aspiring for a job, you can apply the PDP process. If you're someone who's already well established in the field and wants to grow, you can apply this PDP process. And even if you're content with whatever you've achieved in your life, even then you can apply this PDP process. जिसमें आप action plan formulate करके कुछ actions लेते हो, उसके outcome record करते हो, review and evaluate करते हो, and then you start the loop again. Because you see, life is about continuous learning, right? Because ये minimum requirement है to be successful in any and every field. Because you see, learning never stops. ये तो एक continuous process है ना. हम जिस भी stage पे life पे हैं, हमने ये करना है. Okay. So, moving forth,
अब हम बात कर लेते हैं कुछ मॉडल्स की। मॉडल्स बेसिकली फ्रेमवर्क होते हैं जो हमें ये काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप किए जाते हैं। मॉडल्स का हमें फ़ायदा ये होता है दैट यू डोंट हैव टू अंडरटेक ऑल ऑफ द नेसेसरी रिसर्च, you simply have to apply them, right? तो हम यहाँ पे बहुत से मॉडल्स हैं फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वी विल बी डिस्कसिंग टू मॉडल्स। Number one is competency model and the second one is remote internship model. Right, अच्छा सॉरी एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास सबसे पहले है कॉम्पिटेंसी मॉडल। इसको हम अगर सिंपल डेफिनेशन में कहें तो एक गाइडलाइन है जो डेवलप की हुई है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ह्यूमन सॉरी जस्ट अ मिनट, राइट सॉरी ओके। सो दो हमारे पास मॉडल्स हैं, कॉम्पिटेंसी मॉडल एंड रिमोट इंटर्नशिप मॉडल। सो कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या है? एक सिंपल गाइडलाइन है जो एचआर डिपार्टमेंट ने डेवलप की गई है। बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी फील्ड, राइट? बिकॉज वो बहुत से आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को ज़ाहिर है मैनेज करते हैं। सो एचआर ने डेवलप किया हुआ है ना। एचआर टेंड्स टू बी वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयज, बट इन रियलिटी एचआर इज समथिंग दैट इज वर्किंग ऑन बोथ द एंड्स। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी देखना है एंड आपके एम्प्लॉयर को भी देखना है, राइट? तो कॉम्पिटेंसी मॉडल उन्होंने डेवलप किया हुआ है जिसके थ्रू दे टेंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी ऐसी performance की सक्सेस है that has to what success should look like to an employee and to the organization as well. तो आप जिस भी फील्ड में आपको पता हो कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जॉब की और क्या आपका सक्सेस क्राइटेरिया है, कौन सी कॉमन लैंग्वेज है जो आपने अडॉप्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एंड स्ट्रैटेजी क्या है, उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन अचीव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक सिंपल टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पर्सनल गोल्स को अलाइन करते हैं विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं बिकॉज अगर आपके पर्सनल गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं तो ये रिजल्ट करता है इन स्ट्रेस विच फर्दर लीड्स टू जॉब बर्नआउट, विच फर्दर लीड्स टू या आप अपनी जॉब क्विट कर दोगे या ऑर्गेनाइजेशन आपको अल्टीमेटली फायर कर देगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी को मैच करो विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड हमारे पास आती है रिमोट इंटर्नशिप मॉडल। इंटर्नशिप जो है ओवर द ईयर्स हमने काफ़ी सुना है कि आप जब अपने स्पेशली जब लेटर ईयर्स में होते हैं अपने बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है टू वर्क एज एन इंटर्न। इंटर्नशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज ये बेसिकली आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग एक्सपर्टीज या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। जो आपने क्लासरूम टीचिंग कर ली, जो आपने वहां से पिकअप करना था, ग्रास्प करना था, वो आपने कर लिया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने बुक्स में पढ़ा है, जो आपने क्लासरूम में सीखा है, उसको आप अप्लाई करो इन द रियल वर्ल्ड। सॉरी एक्सक्यूज मी। Hey everyone, so Ilza is having 1 minute break. So if anyone has any comment or any question, you can just unmute your mic or you can share in the public chat. So I think Mr. Mustansir, do you want to say something? Assalamu alaikum. Yes, assalamu alaikum sir, कैसे आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। So thank you very much. मेरा मैम से क्वेश्चन है कि sometime there are some people who have certain qualities, personal skills, knowledge, etc. But they don't have the ability to properly utilize that to a particular field of profession particularly. So sometimes they are in a first condition, what they want to say, what they want to I mean to say convey to the organization. That's what she has just mentioned in the employability qualities basically. So in that condition उनके लिए क्या ऐसा फोकस या क्या ऐसा होना चाहिए कि वो इस चीज़ को कर सकें प्रॉपरली, कि एक खास स्किल को या एक खास जो उनकी है pertaining to particular फैशन वो उसको लेके जाए। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। आपका जो क्वेश्चन मुझे समझ आया वो बेसिकली ये है कि हम किस तरह से अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं, राइट, या लर्न कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना आपका? सी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा स्किल है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेवेंट है या वो कोई ऐसा ट्रांसफरेबल स्किल है जो आप सीख सकते हो। फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन,
आपको ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर आपको वर्क करवा रहे हैं. इफ यू टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स है, अगर आपने बिल्डअप करनी है अपनी कोई, फॉर इंस्टेंस आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है एंड यू वांट टू बिल्ड अप दैट, again there are many platforms that can help you with that. All you have to do is just search. um Sorry, you want to say something? Yes, it's okay. I'm getting that. Thank you. Right. So that it's very simple. कोई भी इस तरह का स्किल है जो आपको लगे कि आप लैक कर रहे हो या you want to develop, there are multiple opportunities on the internet. You just have to explore them. आप उनको सीखें and then you can even apply them. So you see, learning is a process. आप जिस भी स्टेज पे हो लाइफ में, it should never stop. And especially ये जो हम एक अकेले डर लेके बैठे होते हैं, we tend to think that I don't know, I cannot do this. We have to eliminate that concept that we cannot do it, because if you want to, you can do anything and everything in life. Even if आपको scratch से start करना हो, you can do it. You just need to have that kind of mindset that I want to achieve it, right? Is there anyone else who has any question? Yes, one more thing, Venkali, Yes, sir. which is that sometimes there is an age factor. No, sometimes the person feels that he is age, or there is some other you can say other factor like some disease like which is which can happen at any time. Like for example, if some body having hypertension, so hypertension is such a condition in advanced age particularly that really has limited the capability of the personality of the person. So this is one limiting belief I can say might be the limiting thing, the limiting belief. तो इसको कैसे overcome किया जा सके? Thank you so much. Sir, you're right. It's a limiting factor, and ऐसे बहुत से limiting factors हैं जो हमारे control में नहीं है, जब beyond our control. But again, you see, हमने पीडीपी में यही चीज डिस्कस की, अगर आपने कोई स्किल डेवलप करना है, उसका एक्शन प्लान आपने खुद बनाना है, वेयर यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है. एज शुड नेवर बी अ वीकनेस. आई मीन यस, विद एज ये प्रॉब्लम आता है दैट हमारी लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है जितनी एक छोटे बच्चे की होती है, या एक ऐसा स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है. आई टेंड टू अंडरस्टैंड दैट. बट देन अगेन, एक्शन प्लान तो सब्जेक्टिव है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो. तो जब आप अपना एक्शन प्लान डेवलप कर रहे हो एंड दैट दैट मैं एज के उस स्टेज पे हूँ दैट आई मे नॉट बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट एज क्विकली, एज रैपिडली और एज कन्वीनियंटली एज अदर पीपल अराउंड मी, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन प्लान को पर्सनलाइज कर दोगे. देन इफ यू हैव ऐसी कोई कंडीशन विच इज लिमिटिंग यू, अगेन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. इफ यू बिलीव दैट आप ये इतना स्मूथली अचीव नहीं कर सकते हो, तो अपने गोल को डिवाइड कर दें फर्दर. ठीक है, जो भी आपका लाइफ का गोल है, आपने एक स्किल सीखनी है, फॉर इंस्टेंस दैट सेशन इज या दैट कोर्स इज फॉर 3 months, मे बी आपको 6 months लग जाएंगे. आई मीन यू डोंट हैव टू पुट अ क्लॉक ऑन दैट ना, कि क्लॉक तो आपने खुद डिसाइड करना है, आपने खुद ये देखना है दैट आपको कितना टाइम लगना है वो स्किल अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज नो टू पीपल आर सेम. ऑनेस्टली कोर्सेज हमें इस तरह के मिलते हैं जो 3 में एक करते हैं एंड दे टेंड टू अचीव दैट एज वेल. बट अगर आप फील कर रहे हो कि आप आउटलायर हो, यू कैन नॉट अचीव दैट पर्सनलाइज्ड, एंड दैट्स ओके, बिकॉज एज फार एज यू वांट टू लर्न एंड यू आर लगती है, राइट? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yes, of course. Thank you so much. This really has given me an insight, and definitely this will go along. Thank you so much. Okay, let's just continue. अच्छा, हम बात कर रहे थे मॉडल्स की. हम कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो वन ऑफ देम वाज कॉम्पिटेंसी मॉडल व्हिच आई ट्राई टू एक्सप्लेन. अब हम बात करते हैं अबाउट रिमोट इंटर्नशिप मॉडल. अच्छा, एज आई वाज सेइंग कि वर्क बेस्ड लर्निंग जो है वो बेशक इंटर्नशिप की फॉर्म में हो या किसी और किस्म की अप्रेंटिसशिप हो, व्हाट यू कैन डू इज, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आइडिया है जो कि डेवलप हुआ इन द अर्लीस्ट 21st सेंचुरी, और बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि इसके बैक एंड पे जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज द एडवोकेसी फॉर वर्क बेस्ड लर्निंग, बिकॉज दैट्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके कॉम्प्लीमेंट करता है एकेडमिक लर्निंग को.
बहुत दफ़ा हमने इस तरह देखा है कि हमारे क्लासरूम्स में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी फैमिली में या इवन हमारे अपने बच्चे, दे टेंड टू अचीव गुड ग्रेड्स, राइट? लेकिन जब वो एंटर करते हैं अपना प्रोफेशनल वर्ल्ड तो दे टेंड टू फॉल बैक। ये हम बड़ा एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। आई टेंड टू हेयर पीपल अराउंड मी कि हमारे तो इतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग CGPA नहीं था, बट वी आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग आवरसेल्व्स इन द फील्ड इटसेल्फ। That is where internship comes in the play. You see, आपके पास जब ये अपॉर्चुनिटी आती है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि यार ये तो हमें उतना पे नहीं कर रहे हैं या इसका इतना बेनिफिट नहीं लग रहा, सिर्फ 3 months की तो है। बट what we fail to understand is that this is the door. जब आप ये डोर ओपन करोगे, जब आप ये अपॉर्चुनिटी लोगे, इवन इफ वो हेक्टिक है, इवन इफ वो आपके जो स्टडी स्केड्यूल है उसको डिस्टर्ब कर रही है, इवन इफ वो आपको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पे बैक नहीं कर रही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग दोज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ साइट। वो तो ठीक है अपने वर्क प्लेस पे जाके आप डेवलप कर रहे हो, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। और अब तो ये इंटर्नशिप्स आपके पास रिमोटली भी आ गई है, जिसको हम वर्चुअल भी कहते हैं, जिसको हम माइक्रो भी कहते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी वेंडर्स भी कहते हैं, ठीक है? ये जो रिमोट एंड ऑफ साइट कॉम्पिटेंट है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का इन टर्म्स ऑफ वर्किंग बिसाइड्स योर ऑफिस आवर्स, ये मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन एडवांटेज एंड एक्चुअली हैविंग दोज ऑन वर्क एक्सपीरियंस बिफोर बीइंग ऑन वर्क, राइट? और आपको बेनिफिट इंटर्नशिप्स का ये भी होता है जब आप इनको अप्लाई करते हो, दैट यू कैन इवन progress into the job role, ठीक है? If you are performing good in the internship, if you are learning, and even if you are not performing good, ठीक है, आपको नई चीजें समझ आ रही हैं, आपकी लर्निंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So it's important कि हम इस एरिया को एक्सप्लोर करें, हम रिमोट इंटर्नशिप को सर्च करें। हम रिमोट जॉब्स तो बहुत सर्च करते हैं, लेकिन हम रिमोट इंटर्नशिप्स को pretend to ignore them, considering कि ये तो कोई सब्सटैंशियल हमें चीज रिटर्न में नहीं दे रही है। बट यू सी इट्स अ प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है, ये कोई इवेंट नहीं है, ठीक है? मे बी you may not be able to get whatever you are expecting कि मुझे इतना कुछ या मुझे जॉब फॉर श्योर मिल जाएगी इंटर्नशिप करने के बाद, मे बी आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, बट this will definitely make you learn, and you have to learn continuously, because you see there's always one more thing that you have to learn, और वो one more thing किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में हो सकती है, राइट? सो यहाँ तो हमने डेवलप कर लिया फाउंडेशन ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि सबसे पहले हमारी जो कोर है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, फॉलोड बाय आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंड उसके बाद एक बहुत जो क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन, एज अ करियर, दैट इज करियर प्लानिंग। तो अगर हम हार्डकोर डेफिनेशन की बात करें, आई थिंक एवरीवन नोज करियर प्लानिंग सिंपली ये है कि आप असेस करते हो कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है लाइफ में, आपने क्या अचीव करना है, आपने किस प्रोफेशन में जाना है, देन पीरियडिकली यू टेंड टू अपडेट इट, ठीक है? इसमें आप एक्टिवली करियर प्लानिंग में आप सिर्फ अपना करियर मैनेज नहीं कर रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की नीड्स क्या है और आप किस तरह से असेस कर सकते हो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को। अच्छा, जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं, आई मीन इट्स अ डेफिनेशन दैट एवरीवन नोज, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है दैट आई हैव फ्रॉम एवरीवन सिटिंग हियर, दैट हु हैंडल्स प्लानिंग एंड मैनेजिंग योर करियर? एनीवन? बेसिकली तो हमें खुद ही इसको हैंडल करना चाहिए अपने करियर प्लानिंग को, लेकिन आई फील कि इसमें माइट बी पीयर्स, माइट बी फैमिलीज, आवर आई मीन टू से आवर पेरेंट्स एंड मे बी सिबलिंग या कुछ ऐसे हमारे सराउंडिंग में जो है बेसिकली दोज आर बेसिकली द पीपल whom we think that they are handling our planning and managing our career. हम खुद शायद बहुत कम होते हैं, आई फील दैट। That's very right actually sir, ये but you see that's a dilemma। हम सबको अपनी करियर प्लानिंग जो है वो खुद हैंडल करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है what you have to be when you grow up। हम बड़ा इवन अपने बच्चों को भी हम कहते हैं I want you to be a doctor when you grow up, या I want you to be an engineer when you grow up। हम में से कोई आर्टिस्ट या इवन फुटबॉलर या इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है व्हिच वी बिलीव माइट नॉट बी बेनिफिशियल फॉर देम, ये हम टर्म्स नहीं बोलते या बहुत कम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत ही अच्छी डिस्कशन जा रही है, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा वेरी गुड सेशन। तो ये जो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि हम ये सोचते नहीं है कि हम में से कोई आर्टिस्ट बने या कोई इंजीनियर बने, कोई आर्टिस्ट बने या कोई ऐसा ऑप्शन ले जो कि क्रिएटिविटी बेस्ड है। तो उसकी वन ऑफ द रीजन मुझे लगता है कि ये है कि हम चूंकि सोसाइटी को देखते हैं और सोसाइटी में जो एक कंपटीशन चल रहा है हम उसके ऊपर लगे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा इस पे ट्यून्ड है, वन ऑफ द रीजन। और इसकी वजह से हमने अपने बच्चों को, अपने सब जो टीनेजर्स हैं उनको तो बिल्कुल बीमार कर दिया, क्योंकि उनको सिर्फ या तो डॉक्टर बनना है या उनको इंजीनियर्स बनना है। और मैंने ये भी पढ़ा था कहीं कि जब आप किसी की क्रिएटिविटी को सुप्रेस करते हो तो बेसिकली ये रीजन है बीमार होने की, रीजन है नॉट कनेक्ट ना होने की। आप देखो, आप कह रहे हो कैरियर प्लानिंग के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो हमें खुद प्लान करना चाहिए। तो पहले तो हमारा सिलेक्शन खुद होना चाहिए, उसके बाद हम खुद प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम उसके ऊपर सोच सकते हैं। अब अलमिया ये है कि हम ना तो वो खुद सोचते हैं और उसके बाद फिर हम देखते रहते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल कैसे होंगे। हम वो जो सक्सेस का एक नंबर है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, खुद को पता ही नहीं होता कि हमारे पास हमारी इनर कॉम्पिटेंस क्या है जो उसके साथ मिल सकती है। तो ये जो कॉम्पिटेंस है ना, ये तभी डिस्कवर हो सकती है जब हम खुद से अपने काम के ऊपर चल रहे हो, सिलेक्शन भी हमारा हो, प्लानिंग भी हमारी हो। बिल्कुल। और एक और बात रिजा, अभी आप बात कर रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जब हम कहीं किसी जगह पर काम करते हैं तो हमें उनका बेसिकली रिक्वायरमेंट जो कंपनी में जो कॉम्पिटेंस वो मांग रहे हैं, अगर हम उसके साथ अलाइन नहीं करते तो या तो हमें उस जगह को क्विट करना होता है या फिर हम वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि हम उसमें उस कॉम्पिटेंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। यही बात आपने अभी अपने सेशन में पहले आप ये बात बता रहे थे ना। यहाँ मैं एक और पॉइंट आपके उसके साथ मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें आपका इनपुट क्या है, या आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब एक कोई पैशनेट पर्सन मैंने देखा है जब अपने काम में मूव कर रहा होता है आगे, तो आपका जो सिस्टम है जो इस वक्त हम जहां भी काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों को उसके ऊपर प्रमोट करता है, वो बहुत कम लोगों उस कॉम्पिटेंस को बहुत इजीली अचीव कर रहे होते हैं। मैंने देखा उन लोगों के लिए ज्यादा हर्डल होते हैं जो कि उस कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं और आगे आ रहे होते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो लाइन है सिस्टम ने उसको ऐसे मोनोपोलाइज किया हुआ है कि उसके अंदर सिर्फ चंद लोग रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाज़ दफा हम कॉम्पिटेंस को डिस्ट्रॉय भी करते हैं बाय गिविंग और एंगेजिंग डिफरेंट थिंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस पे आपका क्या इनपुट है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए उस अपने कॉम्पिटेंस बचाने के लिए? That's a very interesting point. You see, leg pulling तो I think every industry में ये होता है, irrespective कि अपनी फील्ड के, बिकॉज किसी जो टॉप मैनेजमेंट या जो आपकी टॉप प्लेयर होती है ना, they don't want to be replaced. और जो हमारे पास यंग ब्लड आता है, they naturally tend to be more energetic in life, उनके पास न्यू आइडियाज होते हैं, ठीक है। वो जब इस तरह की इंडस्ट्री में एंटर होते हैं उनको फैसिलिटेशंस नहीं मिलती, इनफैक्ट उन पे वर्क इन अ वे थोप दिया जाता है, अच्छा यू कैन डू दिस, यू डू दिस एज वेल। उनको जो इम्पोर्टेंट आपके डिस्कशंस है उनमें इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। सो दैट इज द, I believe that too is a learning point for you, because you have to see that what do you want to be a part of such an organization. हमारे यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है that people who tend to, ये जो हमारी जॉब फील्ड के अंदर लोग हैं, they tend to be in this field because they have to earn money. हमने अपना सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव ही मनी ओरिएंटेड कर दिया है बहुत से इंडिविजुअल्स ने, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट majority, that's okay because obviously you have to earn in order to survive, you have to earn. अगर हम थोड़ा सा हमें क्विट करना चाहिए कॉम्पिटेंस बचाने के लिए, क्विट करना चाहिए, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। You have to actually fight because this is the race of the fittest. ठीक है, आपको स्टार्ट में मे बी वो जो आप चाह रहे रिकग्निशन वो नहीं मिलेगी, मे बी इट विल टेक यू अ ईयर और सो, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, बट
आप जिस नेटवर्क का पार्ट हो, उस नेटवर्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी ना कभी उस ऑर्गेनाइजेशन को इन द नियर फ्यूचर छोड़ के जाएंगे, एंड दे छोड़ते टेंड टू जाएंगे। चेरी पिक। हाँ वो चेरी बिल्कुल पिक ठीक। करते हैं कि ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो मे बी आपको अपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप आज पार्ट हो, वो आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही है, बट व्हेन यू विल बी एंटरिंग द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, you're going to be far better than you were in the previous organization, and by हाँ तब तक तो I believe आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आइडिया हो जाता है। हाँ, लेकिन You know मैं ये how समझती हूँ कि देखिए आपके पास चॉइस होती है ना, आपने चूज किया कि आपने पॉलिटिक्स वाली साइड पे जाना है, या आपने चूज किया कि आपने अपने कॉम्पिटेंस पे काम करके confidence पे इसी के work थ्रू करना आगे है। जाना है। और इसके लिए नोइंग योर सेल्फ इज वेरी 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 Very important. इम्पोर्टेंट, कि आपका That's the अवेयरनेस best अपने kind of everything. हाँ। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। यहाँ सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो जिस पे वो काम कर रहे हैं, अगर उस काम को कोई हिलाए तो उनको उस जगह को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर Yes. आपका कॉम्पिटेंस चला गया तो फिर आप हो जाओगे वेस्ट। बेशक आपको वो Exactly. चंद रुपए मिलते रहे, है ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल है इर्जा आप प्रेस किया, आ जाए, Yes, yes. अनम्यूट योरसेल्फ। गलत word है, Uh, excuse please. Hello? Ma'am, can I talk with your permission? Yes, sure. Sure. बिल्कुल, आपने अभी जो बातें की है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली ये होता है कि पीपल आर लॉयल विद देयर कंपनीज मोस्टली। I mean to say their employers, yeah, employment. No doubt they should be, but I feel that we should be more loyal with our job. अब बात वही, आप जॉब मीन कॉम्पिटेंसी। हम अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ लॉयल नहीं होते, हम कंपनी के साथ हो जाते हैं, और उसका हमें डिसएडवांटेज ये होता है कि कंपनीज जो है वो तो आपको छोड़ भी सकती हैं, वो आपको फायर कर सकती हैं, दे सैक यू, बट योर पर्सनल कॉम्पिटेंसी, योर जॉब, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट यू मस्ट बी, दैट शुड बी इंटैक्ट विद यू। और बिल्कुल जिस तरह से आप माशाल्लाह दोनों बड़े अच्छे तरीके से चीज़ को बात करें, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें लॉयल होना चाहिए अपने जॉब के साथ। वही बात, अपनी स्किल, पर्सनल और प्रोफेशनल और नॉलेज, उसको अपग्रेड करते रहेंगे तो हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम खुद ही सोल्यूशन होंगे हर जगह पे, और हमें कोई प्रॉब्लम की फेस नहीं करना पड़ेगा। दैट्स Yes, very true. Thank you. Okay, I think मेरे Ms. ख्याल है Talat वो had a question. बुलाए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे पूछना था, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि हमें पता हो कि हमें कैरियर में सिलेक्शन में हमें खुद करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें पता हो कि हमें करना है क्या है। लेकिन मैं बच्चों के हवाले से बात करूँ कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में होते हैं, बच्चे जैसे कुछ लोगों को तो 50 साल तक नहीं पता चलता ना कि भाई उनको करना क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है, बच्चों के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटी गोइंग के बच्चे हैं, तो जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा बेटा है, 4th लास्ट ईयर में फास्ट में ना, बट स्टिल वो कभी कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा और कभी कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर में करूंगा। अगर बच्चों में अगर छोड़ दें हम कि अगर वो कहते हैं मैं बिजनेस करूंगा, तो मतलब कि ये चीज, क्योंकि मैंने अमूमन तो देखा है पेरेंट्स को कुछ लोग बच्चों को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, 2-3 साल किसी और फील्ड में काम करते करते फिर आखिर उनकी एज निकल जाती, बाद में कहते हैं हमें ये फील्ड पसंद नहीं है, हमें इसमें एक्सेल नहीं करना। उससे होता है उनकी एज निकल चुकी होती है ना। तो इसको हम कैसे, एक तो कैरियर काउंसलिंग होते हैं उनके पास आप जाके कर सकते हैं, या कैसे इस चीज को किया जाए कि बच्चे जो है वो मतलब हम एक एज ए पेरेंट्स हम खुद आइडेंटिफाई कर लें कि भाई उस बच्चे की क्या मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि बच्चे अमूमन वो नहीं कर रहे होते, नहीं कर पाते समटाइम। कुछ बच्चे देखो शुरू से कह रहे होते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना, वो बनते भी हैं डॉक्टर। कुछ लोग यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, उससे पहले उनके पेरेंट किसी चीज में करवाते हैं तो कहते हैं हाँ किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाए हमारा ना, बस हमें एडमिशन मिल जाए अच्छी यूनिवर्सिटी में। उनका कोई विजन नहीं होता। और जब पेरेंट को विजन देते हैं कि भाई ये कर लो, या इस चीज का वो ज्यादा ट्रेंड है, या फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी वाले वहां पे बता रहे होते हैं कि ये इस चीज का ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो बच्चा फिर कर लेता है। लेकिन करने के दौरान फिर स्टिल कंफ्यूज रहता है वो ना, उसको नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। तो इसी से थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा आंसर। That's a very interesting question. You see, बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, बहुत से बच्चों को भी कंप्लेन होती है दैट यू नो इट्स अ टू वे प्रोसेस। इधर देयर सेइंग कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इट्स द पेरेंट्स हु से कि हमारा जो बच्चा है वो बात नहीं सुन रहा या आइडेंटिफाई नहीं कर रहा अपने स्किल को। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट बिलाल हैज रिटन दैट यू नो करियर काउंसलिंग जो है वो एक नॉर्म नहीं है पाकिस्तान में। दैट्स वेरी ट्रू, अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेरी ट्रू। किसी हम सैडली हम
जिस जनरेशन में है या जिस तरह के जो जनरेशन में हमारे बच्चे रेज अप हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी इन्फॉर्म्ड जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो ये नहीं है, आई बिलीव के I even tend to apply it on myself कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें कहा that you have to be a doctor, you have to be an engineer or whatsoever, हम बात मान भी लेते थे, हम कर लेते थे। आजकल के बच्चे उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते बिकॉज आजकल आई बिलीव अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे, अगर हमने स्टार्ट में बात की ना पीडीपी की, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी की स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स क्या हैं। इफ यू हैव अ पेरेंट हु इज कंसर्न, दैट्स अ वेरी बिग एसेट फॉर यू। A parent who wants to be involved, a parent who wants to help you in terms of growing, ठीक है आपका बेटा जो है वो, अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ, इज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में माशाल्लाह, सो ऑब्वियसली उसने सारे ईयर्स अपने पास किए हैं, उसका ऑब्वियसली इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर। अगर वो डिविएट करना चाह रहा है टुवर्ड्स बिजनेस, देयर हैज टू बी समथिंग जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है टू बी इन बिजनेस, बिकॉज ऑनेस्टली अ पर्सन हु इज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वुड नो, I believe would know nothing about business, because business तो एक पूरा हार्डकोर सब्जेक्ट एरिया आ जाता है ना। तो अगर वो बिजनेस वाली फील्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब देयर इज सम इन्फ्लुएंस, देयर इज समथिंग जो उसको यू नो इंटरेस्टिंग लग रहा है उस फील्ड के अंदर। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट फर्स्ट कि इफ यू वांट टू अडॉप्ट दिस फील्ड, उसका रीजन क्या है, व्हाई डू यू थिंक यूर अ गुड बिजनेसमैन, या व्हाई डू यू थिंक यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, या आप इस चीज को रेस कर सकते हो, आप इस तरह से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर सकते हो, या आपकी फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव करियर काउंसलर्स है, एंड द वंस वी डू माजरत के साथ, आई डोंट थिंक वो इतना प्रॉपर्ली आपको गाइड कर सकते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमें खुद भी अपने जो की स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस है वो कम्युनिकेट करनी नहीं आती है। बहुत से बच्चों को, आई अटेंडेड अ करियर काउंसलिंग सेशन व्हेन आई वाज यंगर, एंड ऑनेस्टली जब मुझसे पूछा गया दैट व्हाई एम आई इन दिस फील्ड, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया, बिकॉज बताया ही नहीं गया, कुछ पता ही नहीं था कि व्हाट आई हैव टू से और व्हाई एम आई इन दिस फील्ड, बिकॉज जो कहा गया वो फॉलो कर लिया। सो हमें इस नॉर्म को तोड़ना है सबसे पहले। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हम इस फील्ड में क्यों है, हमारा इंट्रिंसिक रीजन क्या है, हमारे गोल्स क्या है उस चीज को लेके, और क्या वो गोल्स हमारे अचीव हो रहे हैं। ये तो इर्जा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पे। अब अगर ये पेरेंट्स इस बात को देखे ना, जैसे अभी बात तलत ने बात की कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो उनके पास कभी वो ये कहते हैं और कभी वो ये कहते हैं, मतलब डिफरेंट क्लैरिटी नहीं होती उनको। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप बच्चों को क्लैरिटी लेने के लिए रैंडम गलतियां करने दें, छोटी एज में पिक एंड चूज करने दें, तो वो बाय द टाइम उनको क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो एक अलमिया है वो ये भी है कि हम गलती को सिन समझते हैं, मिस्टेक्स को, या जो हम चॉइसेस बच्चे ले रहे होते हैं हम उनको स्पेस ही नहीं दे सकते। हम चूंकि स्पेस नहीं देते क्योंकि हमें हर चीज सही चाहिए, उसकी वजह से हमारे बच्चों ने क्या किया कि हमारे बच्चों ने सही दिखाने के लिए सवाल करने बंद कर दिए, और जब सवाल करने बंद हुए तो अब बच्चा जाके 40 पे खड़ा होकर सोचता है कि नहीं नहीं यार, मैं तो यहाँ जाना था, मैं तो वहां जा रहा हूँ। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बनी हैं कि चलो फिर अब ये जाते हैं, ये वाला काम करते हैं, यहाँ से पता चलते हैं, अपने आप का पता ही नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत छोटी एज से सवाल करने दें, एक्सप्लोर करने दें, गलतियां भी करने दें, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उनको जिम्मेदारी भी लेने दें, तो शायद वो क्लैरिटी उनको बहुत शुरू में मिल जाएगी। इतनी देर में जाके वो रॉन्ग चॉइसेस पे नहीं आएंगे। करियर काउंसलिंग इज अ वेरी गुड थिंग जो कि कॉमन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये बेसिक अपब्रिंगिंग के ऊपर भी बेस करता है। ट्रू, वेरी ट्रू। यस मिस तलत, आपका कोई पॉइंट है? जी मैं ये पूछना था कि इंटर्नशिप जो है ना, इंटर्नशिप के हवाले से पूछना था कि इसमें अच्छी इंटर्नशिप एक तो आप बताइएगा। अभी आपने इन्फ्लुएंस की बात की थी, तो वो नाना अब्बू अपने हैं, उनसे इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, बट वो ये प्रॉब्लम है कि हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है। अगर हम उसको 45-46 की एज में जाके हम कैसे उसको बिजनेस सेटअप करके दे सकते हैं ना, ठीक है, उस पे हमें भी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस करना है। क्योंकि देखें, अगर बच्चों पर छोड़ दिया जाए, बिजनेस खुद सेट करें, तो बाहर की दुनिया क्या है आपको पता है ना, फ्रेंड्स सर्कल क्या है ना, वो खुद कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे। और अगर उनको करके दें तो उसमें फिर हमें बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा बिजनेस हो, कौन सी सिटी हो, क्या है क्या नहीं ना। तो क्या इस सिलसिले में पहले पेरेंट्स को वर्किंग करनी चाहिए, जैसे या मदर को, भाई कौन सा सिटी या क्या इसको इंटरेस्ट है, किस बिजनेस में है, वो एक्सप्लोर करके उसको सेटअप बना के दिया जाए।
क्योंकि मेरे एग्जाम्पल फैमिली की है कि मेरी बहन के 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तो 2 सीए कर रहे हैं, सेकेंडली, क्योंकि थर्ड वन जो है आफ्टर ए लेवल उसने फौरन कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसके अब्बा ने उसको बिजनेस सेट करके दिया, मतलब उसने खुद नहीं किया, सेट करके दिया है। अब माशाल्लाह 3 साल हो गए, वो बच्चा बहुत बेहतरीन अर्निंग कर रहा है और सारा कुछ है और सेटिस्फाई भी है, लेकिन उसको करके दिया गया ना, उसको ये तो नहीं कहा कि आप कर लो, पैसे ले लो, आप सेट कर लो, नहीं, उसको करके पूरा एक बिल्डिंग, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरा एक चीज बना के उसको दी गई और उसमें वो बैठ के वो कर रहा है। ये चीज मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मेरे सामने एग्जांपल्स है तो इससे मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। Again, a very interesting point. I would say कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना, उसकी नंबर 1 कोई एज नहीं है फॉर मी, आई बिलीव। यस, मिस आसिया ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि छोटे होते से यू हैव टू लेट देम डू मिस्टेक्स। गलती कर करके ऑब्वियसली हम सीखते हैं, बट जिस स्टेज की आप बात करें, आई बिलीव इट्स बेटर कि बिफोर आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली एक फील्ड में एंटर हो जाओ, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू इट। अगर आपने बिजनेस भी सेटअप करना है तो आई वुड सजेस्ट इन्वॉल्व ऐसे अपने बेटे को या अपने बच्चे को या व्हाट्सएवर, जिसको भी आपने एक नया करियर फील्ड जो है वो एक्सप्लोर करवानी है, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अभी किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू अ जॉब फर्स्ट। आप जॉब करोगे, आपको हाँ बिजनेस का थोड़ा आइडिया होगा। आप बिल्कुल अगर इर्जा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा बताया। ये जो पॉइंट आपने अभी बताया ना, तलत क्वेश्चन कर रही थी आपसे, ये पॉइंट अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, इसमें मैं ऐड करूं कि अगर बिजनेस पूरा सेट करके देने के बजाय जो बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे थे उसमें आप अपने बच्चे को एक लोएस्ट पोस्ट पे रख कर काम करवा के अपग्रेड करते, तो आपके बेटे को ये बहुत अच्छे से पता होता कि उस बिजनेस की निटी ग्रिटी क्या है। मैं नहीं समझती कि एक पूरा बिजनेस बनाकर आप बच्चे को उसकी टॉप पोजीशन पे बिठाएं और आप कहें कि आप बिजनेस रन करो। बिजनेस रन करने के लिए आपको जो बिजनेस चला रहे थे सबसे पहले उनको सबसे नीचे वाली पोस्ट से काम करना शुरू कराते और ग्रेजुअली अपग्रेड करते, तो उनको पता चलता पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इस स्टेज तक आने के लिए कितना काम करना पड़ता है। जो कि इर्जा ने कहा और मैं उसको रीइंफोर्स करती हूँ, इर्जा ने कहा कि आप इंटर्नशिप या जॉब इज अ बेटर थिंग बिफोर गिविंग होल बिजनेस। उसको स्टार्ट करने के लिए देने के बजाय उसको काम करवाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। One thing I want to add between among all these sessions, which is that एक तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसको राइट फ्रॉम द स्क्रैच उसको स्टार्ट करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि व्हेनेवर वी स्टार्ट तो हमें एंड को भी माइंड में रखना चाहिए, मीन कि हमारा वाई जो है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर कि व्हाई वी गोना डू दिस, व्हाई वी गोना डू दैट। तो अगर हमारा वाई फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर क्लियर होता है तो अल्टीमेटली हमारा एंड भी और हमारा मिडल भी और एवरीथिंग दैट विल बी वेरी वेरी आई मीन टू से प्रोडक्टिव और वो फ्रूटफुल होगी। बिकॉज शुरू से हमें क्लियर ही नहीं होता कि हम इसमें हैं तो क्यों हैं। बस जिसको भी पूछें, कोई कहता है जी मैं ये एजुकेशन ये कंप्लीट कर लूँ तो अच्छी सी जॉब करनी है, किसी को क्लियर ही नहीं होता अपनी लाइफ का मोटो लाइफ। वो तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक तो वो भी बात है कि बिल्कुल किसी को वो बनी बनाई नहीं बना के देनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह से मिसासी ने कहा कि उसको हमें दिखाना चाहिए ताकि उसको पता हो कि ईच एंड एवरीथिंग जो किस तरह से प्रोसेस की चल रही है। तो आई बिलीव कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखना चाहिए कि अगर मैं ये करूँ तो उसके बदले में कौन सा बेहतर कर सकता हूँ। तो उसका वाई व्हेन वाई इज क्लियर देन एवरीथिंग विल बी गोना गो इन अ better way and in the better position. Thank you, Mr. Sansar, to actually adding on to it. So I think यहाँ पे हम इस discussion को wrap up करके let's just move forward with the session because we are very short on time right now. अच्छा, so यहाँ तो I think हमने बहुत अच्छे से इसको identify कर लिया that it's us who should be planning and managing our career. Obviously बहुत से external factors यहाँ पे act करते हैं, आपके parents, आपके वेल विशर्स, बट यू सी यू हैव टू मेक अ करियर प्लान। आपने डिसाइड करना है ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो इन लाइन है विद योर गोल्स, आपने ऐसे कौन सी स्किल्स हैं, ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं दैट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू द चेंजिंग जॉब मार्केट, एंड देन यू हैव टू डिस्कवर फैक्टर्स। जो भी आपने प्रोफेशन चूज किया है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन सी स्किल्स, इंटरेस्ट और क्या क्या चीजें आपको मोटिवेट कर सकती हैं in terms of achieving that profession. You have to prioritize them
एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू फॉलो अ करियर पाथ जो अलाइन करता है आपकी अपने इंटरेस्ट एंड वैल्यूज के साथ, along with obviously हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें the wishes of your well wishers as well, उन सबको अलाइन करके आपने अपना करियर प्लान करना है, बट यू हैव टू प्लान फर्स्ट, राइट? अच्छा, अब कोई हार्डकोर प्लानिंग, करियर प्लानिंग के हमारे पास स्टेप्स नहीं है, बट अगर हम जर्नली बात करें तो बहुत सिंपल से ये स्टेप्स हैं जो 2018 में गार्सास एंड चैम्बर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। वो सिंपल स्टेप्स ये है कि आप एक ओवरव्यू देखो कि आपकी क्या नीड्स एंड वांट्स है अपने करियर में और वो आपको क्या ऑफर कर सकता है इन रिटर्न, राइट? यू डिसाइड दैट एंड देन यू हैव टू सी कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है फॉर यू टू अचीव देम, कौन कौन सी आपने ऑलरेडी डेवलप कर ली है, किस किस को डेवलप करने में टाइम लगेगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग विल हैपन जस्ट लाइक दैट, एवरीथिंग नीड्स टाइम, राइट? तो वो स्किल्स आपने किस तरह से अचीव करनी है ओवर द टाइम जो आपने सेट किया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो जस्ट स्टार्ट नाउ, आपके पास आपके सारी ये ग्रेजुएशन के ईयर्स है जिसमें आपने स्किल्स जो है वो और कॉम्पिटेंसीज जो है उनको डेवलप कर सकते हो बिफोर एंटरिंग द जॉब मार्केट। देन यू हैव टू डेवलप वन और मोर करियर गोल्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते हो, बट यू नीड टू हैव अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच। एंड देन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज यू सी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच शुड बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। अगर आप में ये एट्रीब्यूट नहीं है तो यू कैन नॉट अडेप्ट टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज यू सी लाइफ में हर चीज चेंज करेगी, अपॉर्चुनिटीज नेवर प्रेजेंट इटसेल्फ इन द सेम मैनर, ये चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। आज जॉब मार्केट ऑल है, कल कुछ और होगी, ठीक है? बहुत से फैक्टर्स है जिसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो यू हैव टू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन योर माइंड। हो सकता है ओवर द करियर पाथ जो आपने डेवलप किया है, बाय द टाइम यू रीच टुवर्ड्स द एंड मे बी आपको दोबारा से स्टार्ट लेना पड़े, या मे बी आपको हो सकता है कि अपना पूरा प्रोफेशन ही दोबारा से चेंज करना पड़े। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्डकोर प्रोफेशंस, ऑब्वियसली ये नहीं कि आप डॉक्टर से इंजीनियर पे शिफ्ट हो जाओगे, बट अगर आप एक फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, आपका वो गोल था एंड यू जस्ट सिंपली सी कि यार वेब से ज्यादा जो है वो ऐप डेवलपमेंट की मार्केट इज हॉट राइट नाउ, तो यू मे बी हैव टू शिफ्ट योर फील्ड विद इन द प्रोफेशन, so that's okay. So you need to be that flexible कि अगर चेंज आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर दो। फिर you have to be transparent, आपने अपनी एग्जैक्ट प्रोफाइल प्रमोट करनी है। What happens is हम CV भरने के लिए ना बहुत से unnecessary skills और experiences ऐड कर देते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को तो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली हमारे अंदर ट्रेड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उसको जस्टिफाई करने में इट्स गोना टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग थिंग्स दैट्स नॉट रियल, इट्स बेटर कि आप एक्नॉलेज करो कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, आपने कैसे उनको एड्रेस करना है, कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, अपनी वीकनेसेस को आपने काउंटर करना है, राइट? सो दैट वाज अ सिंपल सेशन ऑन करियर प्लानिंग। अब ये सब लीड करता है टुवर्ड्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी फील्ड में ऑलरेडी हैं, राइट? इवन इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोसेस है जो आपके करियर में थ्रू आउट कंटिन्यूड रहेगा, इट्स नेवर गोना स्टॉप। हाँ, हम इसको एक फॉर्मल वो कह सकते हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग है, बट एक्चुअली जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प करती है, बिकॉज ये प्रोसेस है दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ठीक है? सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट व्हाट बेसिकली इज सीपीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म, and how does it actually helps you. You see, अब हम किस तरह से ये प्लान कर सकते हैं, किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, उसके लिए वी हैव द सिंपल कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या गैप है। ऑब्वियसली यू सी, आपने नेसेसरी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो जॉब तो परस्यू कर ली, लेकिन जब आपने वो जॉब परस्यू किया, आपने अपने अराउंड अपने नेटवर्क में देखा, यू टेंड टू बिलीव कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर लैकिंग, और हर किसी में हर इंसान कोई ना कोई चीज लैक कर रहा होता है। You have to identify that gap. वो गैप आपकी नॉलेज में है, वो गैप आपके स्किल में है, वो आपके एक्सपीरियंस में है, वो कहाँ लाया कर है। Then you have to counter it. उसको काउंटर करने के लिए you have to see कि okay, what kind of courses I can do, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा फोरम है जिसके थ्रू I can fill that gap. So then you have to fill that gap out. उसके बाद आपने इवेंट को रिकॉर्ड करना है। इसी के रिकॉर्डिंग बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा। आप कोई भी टेम्पलेट ले लें, कोई भी आप लॉग ले लें, उसमें आप ये रिपोर्ट करें कि अच्छा, दिस वाज द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग, दिस वाज द एक्शन प्लान दैट आई डिड फॉर इट, एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड दैट गैप। उससे क्या होगा कि जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, जो भी आपने स्किल सीखा है या आपने एक्सपीरियंस कैटर किया है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल अपनी अंदर,
और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी सीपीडी एक्टिविटी जो आपकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो एनहांस करेगी। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपने रिफ्लेक्ट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने सीखा उस पर आप रिफ्लेक्ट करो, आप ये बैठ के सोचो कि मैंने इंट्रिंसिकली उस पर क्या सीखा। एंड बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ऑब्वियसली आज एक स्किल लैक कर रहे हो, कल को दूसरी स्किल होगी, सो यू नेचुरली हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, राइट। सो अगर हम एक सिंपल नटशेल में बोले, सीपीडी एक लर्नर का अपना इनिशिएटिव है, इट्स योर ओन इनिशिएटिव दैट यू हैव टू टेक। इट्स नॉट कि कोई आपको इस स्टेज पे आके लाइफ की पुश करेगा दैट यू हैव टू डू इट, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। एंड आई बिलीव कि एवरीवन हैज दैट इन देमसेल्व्स, एवरीवन वांट्स टू लर्न, ठीक है। हम ये ना सोचेंगे यार अगर हम इस लाइफ की स्टेज पे आके कोई चीज सोचेंगे मे बी वी आर लैकिंग समथिंग, ट्रस्ट मी यू आर नॉट, बिकॉज learning is a very beautiful thing, ठीक है। and it's never done without errors and defeats, so you have to do it। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अब कोई अभी इसके अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है बस एक सिंपल सी अप्रोच है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू वाइंड इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल। सो हमारे पास जो दो अप्रोचेस यहाँ पे हैं, दैट इज सेल्फ असेसमेंट एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सेल्फ असेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, आप खुद देखो, एग्जामिन योरसेल्फ टू फाइंड आउट हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको रियलाइज नहीं हो रहा दैट यू नो हाउ एंड व्हाट वी कैन अचीव इन लाइफ या व्हाई वी वांट टू अचीव समथिंग, उनके लिए सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो अपने ब्रेन का यूज करना है, जो भी आपके पास कॉग्निटिव स्किल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको यूज करके आपने देखना है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डिजायरेबल आउटकम, राइट। अच्छा, अब बहुत से ऐसे टूल्स हैं फॉर दोज जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि हम क्या कर सकते हैं या किस तरह से हमने उसको अचीव करना है, उनके लिए स्पेशली ये टूल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे, ठीक है। सबसे जो इसमें आई वुड सजेस्ट टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI कहते हैं इसको। ये 16 पर्सनैलिटी टाइप्स का टेस्ट है। एंड नेक्स्ट इज द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जब आपको ये आइडिया होगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, हम में से कौन से ऐसे कितने लोग हैं ऐसे जो एक्चुअली बिफोर यू नो यू परस्यूइंग अ जॉब आप ये टेस्ट करते हो या अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हो। आई डोंट थिंक दैट्स अ ट्रेंड दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन to do this test tonight. आप simply MBTI search करो on Google, do this test, figure out your personality and then do analysis कि आप जिस फील्ड में हो क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रही है, राइट। या आप बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट कर लो, जिसमें आपको ये आइडिया होगा। इसमें ना कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटीज होती हैं, देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर एंड व्हेन यू आंसर दोस क्वेश्चंस, एंड पे आपको वो ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है एंड इट इवन सजेस्ट कि आप कौन कौन से प्रोफेशंस या करियर को ऑप्ट आउट कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दैट आई बिलीव एवरी वन ऑफ अस शुड डू, ताकि हमें ये आइडिया हो कि जो लोग अपना करियर स्टार्ट करने लगे उनको ऑब्वियसली हेल्प करेगा, एंड जो लोग जो ऑलरेडी अपने करियर के अंदर थ्राइव कर रहे हैं, आई बिलीव इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर देम टू सी दैट वेदर दे आर इन द राइट करियर और नॉट, राइट। सो अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की। अच्छा, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम इसको जनरली एक नेगेटिव टर्म में ले जाते हैं कि वो उसने हमें क्रिटिसाइज कर दिया। क्रिटिसाइज करना इज एक्चुअली नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। बेसिकली आपकी काम के अंदर प्रोडक्टिविटी ऐड करता है, एफिशिएंसी ऐड करता है, इफेक्टिवनेस ऐड करता है, एक्चुअली हेल्प्स यू टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको इनफैक्ट critically reflect करना चाहिए in whatever profession you are. This will actually help you in terms of using your cognitive skills या strategies, ताकि आप अपनी जो desirable outcome है उसको improve कर सको, उसको rethink कर सको, और आप अपने जो change है उसको allow कर सको in a managed way, ताकि आपके पास ये sense हो कि what is as a profession, जो चीज़ हमारे पास मुदस्सिल साहब ने थोड़ी देर पहले explain की थी, the why. So it's very important to answer your why for yourself as well, कि हम जिस फील्ड में हैं या हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम क्यों हैं, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, and how it can actually help us. So I believe let's just move towards the right. ये last एक slide है, इसको हम जल्दी quickly I'm going to be discussing one model right now. तो हमारे पास है गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। अगेन मॉडल्स जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अगर आप स्टक हो, आपको यू नो हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज योर लाइफ, या किस तरह से डिसाइड करें कि यार हम जो डायरेक्शन जा रहे हैं, जो फील्ड में हैं, हम सही हैं या नहीं है, उसके लिए आप मॉडल्स यूज कर सकते हो। वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस इज गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। ये बेसिकली क्या है, इसमें आपके पास सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हो
कि आप 6 सब स्टेज मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप ले सकते हो कि हम फ्यूचर में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। लाइफ में आपको कोई भी इवेंट हुआ है, सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, डिस्क्राइब द सिचुएशन, वो इवेंट इन डिटेल के कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या एक्शंस लिए, कॉन्टेक्स्ट क्या था। बेसिक हमारा फोकस क्या है कि हमने ऑब्जेक्टिवली रिकाउंट करना है उस इवेंट को विदाउट एनी जजमेंट एनालिसिस एट दिस स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ पार्ट ऑफ टीम प्रोजेक्ट जिधर मैंने एक प्रेजेंटेशन देनी थी टू अ क्लाइंट and we had lot of internal disagreements about how you should deliver the presentation. अब यहाँ पे एक problem आ गया ना, right? Then you have to tell what you were feeling. Acknowledge करना है अपने emotional response को आपने, कि आपने positively and negatively कैसे react किया उस particular situation के अंदर. Obviously, we tend to get anxious, we tend to be frustrated that, you know, if I'm presenting it, तो फिर it has to be the best work I've given. ये होता है. And you will also naturally feel a sense of relief जब वो presentation आपकी खत्म हो जाएगी, because you'll be like शुक्र है खत्म हुई. So you see, that's the feeling that you have to write down what you were thinking, transparent होके बिल्कुल, right? Then you have to move towards the evaluation stage. यहाँ पे आपने देखना है कि what was good and bad about the experience, both negative and positive outcomes. The good thing ये थी कि you were able to manage, you know, and finish the presentation, but the bad thing was that you may not have a good presentation style. The client may not be happy from your work. You know, you have to identify that what really happened. और फिर उस experience से आपने क्या सीखा, आपने analysis करके deeper understanding क्या build up की, कोई past का experience था, for instance आपने recognize किया कि आप better communication strategies लेके आ सकते थे, you could have prepared the presentation in a better way. So that is your realization. फिर आपने conclude करना है what did you learn, क्या क्या इसमें important communication strategies थी जो आप सीख सकते थे, how can you further improve on yourself. And then naturally you have to come up with the action plan जहाँ पे अपने insights को आप translate करोगे in a concrete action and strategies. So in future you can sit and think, I have to make clear communication strategy so that I can be more prepared for the presentation. This was one example. आप इस cycle को implement कर सकते हो for whatever and everything that is happening in your job life, even in your personal life. उसके through what will happen is you'll have a clear roadmap of what was happening, how it happened, what you felt, how can you improve on this, and how can you make sure that it does not happen in future again, right? So that's it, I believe. That's a summary. हमने simply identify किया employability needs skills and CPT is a holistic approach जिसमें आपके पास personal and professional development दोनों बहुत important and crucial role play करते हैं. And lastly, self-assessment is essential for you to reflect upon what and how you've learned and why you're doing what you're doing. So that's it. Any questions? Thank you so much, Irza. It was a wonderful session, and in the end, I would just like to request all of the participants to give review to the session. Log into your account, go to your tutor profile, switch it to your student profile. If you're using mobile, then on top left, there is a menu button. You will click on it and you will find the button to switch to student button. So when you switch to student account, you will go to My Classes. You will scroll down and under My Tuitions on top, you will find Miss Irza's today's session. So thank you so much, Irza. आपने extra time भी लगाया है और it's a brilliant session. Definitely we will edit this session and we will share it tomorrow in the WhatsApp group and with everyone else. So thank you so much. Miss Asiya, do you have any words? Thank you, Irza. Thank you, Irza. Wonderful session. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से डिलीवर किया और हम सारे बड़े कान लगा के सुन रहे थे. तो thank you for the brilliant session. Yes, Miss Talat, आपका कोई question है? Miss Talat, please unmute your mic. Oh, Miss Talat. सॉरी मैं अगेन जी मैं आपको अगेन रिसेप्शन कर रही हूँ. जी मुझे याद था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से मुझे पूछना था कि इसमें अच्छी कंपनीज की इंटर्नशिप, अगर कोई अच्छी कंपनीज बता दें इंटर्नशिप के हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. मिस तलत, ये आपका क्वेश्चन मिस इर्जा से. यस मिस इर्जा, प्लीज. मेरे माइंड में सिर्फ एक दो कंपनीज अभी आ रही हैं. आई थिंक आरबीसॉफ्ट इज समथिंग व्हिच इज ऑफरिंग इंटर्नशिप्स. इसको आप सर्च कर सकते हैं. नेटसोल है, ऐसी बहुत सी बिग कंपनीज हैं. इवन इफ यू जस्ट गूगल इट, आई थिंक यू कैन फाइंड लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर, बिकॉज ऐसे हार्डकोर तो मेरे माइंड में भी नहीं है. आरबीसॉफ्ट इज वन ऑफ देम. एंड बाकी इफ आप प्लीज इसको टाइप कर दीजिएगा जरा. बिलाल ने टाइप कर.
वैसे Irza, I want to share here. The best thing is to create a profile on LinkedIn, और आप उस पर अपना जो सारा प्रोफाइल पे अपनी CV वगैरह डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ना उधर जॉब्स का एक बटन होता है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ ना फिल्टर्स होते हैं कि आपको किस तरह की जॉब्स चाहिए, तो उसमें इंटर्नशिप्स भी हैं, तो मतलब कि वहाँ हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ उधर के जो एम्प्लॉयज होते हैं, HR डिपार्टमेंट्स होते हैं। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपकी। ओके। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाएं, और उधर बेस्ट ये कि वहाँ आपको सब पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी इंटर्नशिप दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है। आप वहाँ अप्लाई करेंगे, उस कंपनी के आप एम्प्लॉयज से, उनके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स अ प्रीटी गुड प्लेटफॉर्म फॉर finding a job. So Irza, do you agree with this? Yes, you're very right. LinkedIn is the right platform for this, and that's a very good point actually. Yes. So Irza, let's wrap up. Thank you so much. Great. It's like 8:18 right now. We are 20 minutes ahead of our time. So see you next week with the new topic, inshallah. And Irza, we will definitely share this session tomorrow, and we will share it with you as well. So I request all of you, when we share, you can share with your folks, your friends and family, because it's a very important session. So Thank you. so let's end it and have a good night. Thank you so much. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.